Hi to all my viewers who watched my home interior video and whoever is liking my video. I'm so thankful to all of you. I am getting lots of questions. People were asking me few queries related to interior, and most of the questions were repeat questions. So I thought I should prepare a video on that, and here it goes. Like the first thing I'll tell you, whenever you are moving for an interior, the things which came in your mind and hitting very hard is like whether we go with some big interior designer companies or we should go with local carpenters, and what are the pros and cons of both, and if I'm going with factory finish, what will happen, and if I'm going with manual finish, then how it will work. So lots of queries. And seriously, when we started our interior journey, that time we don't know ABC of interior, but now like कहते हैं ना, एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत कुछ सीख जाते हो. तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट हाउस. और फॉर मी हाउस इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग. और आपका खुद का जो हाउस है वो आपसे बेस्ट कोई और डिज़ाइन कर नहीं सकता. सो दैट इज़ वाई आई थॉट लाइक आई शुड डिज़ाइन माई हाउस. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने मतलब ऐसे ही कुछ भी रैंडमली मेरे माइंड में आया और मैंने बनाया है. everything whatever is in my house, it has a special meaning, special reason. And मुझे बहुत ज़्यादा ये हवा ये सब कुछ नहीं चाहिए था अपने घर में. तो बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि आज के टाइम में ना आपको इंटीरियर को सिंपल रखना इज अ बिग टास्क. क्योंकि आप बहुत कुछ ये वो करके आप सब कर सकते हो, बट मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई हैं, बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है. हाउस शुड बी अ हाउस ओनली, नॉट अ होटल. सो दैट इज आई ट्राइड टू मेंटेन. So here it goes. So these are the covering points which I'll be covering today. First thing is interior company. What are the pros and cons of interior company? Whether you should go with it or not, and what are all the pros and cons of local carpentry work. Because as you know, I have gone with local carpenter work, but it doesn't mean कि आपका local carpenter work है तो उसमें उसके कुछ आपके disadvantage नहीं हो सकते हैं. Everything has a advantage or disadvantage. So I'll be covering all those things. Then third thing is factory finish. What is factory finished and how they do it? What are the methods they use there? And there is a new thing which is hybrid work model, and this is a thing which we have followed in our interior, and it's work for us. So I'll cover that point as well. And then the manual work, like whether you should go with manual work or not, and the same thing how they do this thing. And then we have a functional comparison of both, like interior company, local company, and factory finish, and the hybrid work model. And everything I'll be covering about strength, quality, whatever, all the aspects of it. And at the last we will have a conclusion, so stay tuned with me. So these are the some pros of interior company. The first thing is professionalism. Professionalism plays a vital role because they are doing a business, so they know how to deal with the client, how to talk to them in well behaved manner, and means they have certain things like they have an agreement and all those things. So ठीक है, वो professionalism रहता है interior company के साथ. Second thing है कि they'll deliver on time. On time means if they have quoted 45 days, so they will deliver your project on time in that 45 days only. So that is a big like point, because time is important for everyone. And the third thing is lesser headache, because आप सब कुछ उनको दे दिया करने के लिए, तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है. आपको कुछ हार्डवेयर, कुछ ये वो कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. वट एवर they'll come to you कि हम ये कर रहे हैं, आपको पहले ही बता देंगे. तो आपको वो सिरदर्दी नहीं होती है कि आपको जगह जगह जाके हर एक शॉप पे प्राइस देखना है, या आपको डिजाइन देखना है, या हार्डवेयर सिलेक्ट करना है. तो दैट इज a good thing in interior companies. Here I'll be covering about the cons of the interior company. The first thing is overpriced. This is seriously the main thing, because whenever you are going for any interior, they'll ask you huge amount, lot of amount, means they'll randomly give you any figure like 10 lakhs, 15 lakhs, 17 lakhs, like that. But do they actually delivering the same quality work? That is a big question. So interior company ka hai ki they'll ask more. Second thing is the quality of work. Why I'm putting here low quality? Because the methods what they are using,
and their main advantage is just to save money, cost cutting and everything. So low quality means they are not going to use good quality plies because there is no transparency. Everything is in their code, so you cannot go and check the ply, because once it is laminated, how you can check the ply, what ply they have used? So that is the thing. The materials which is cheap, which is in their budget, they will suggest you that only, and you will think, oh wow, इंटीरियर डिजाइनर ने मुझे इतना कुछ सजेस्ट किया है, ये वो। आपका कुछ भी आप कुछ डिजाइन लेके जाओगे, if that is cheaper what they have done, they are doing कुछ डिजाइन बना रहे हैं, अगर वो चीप है तो they will give you the ठीक है हम कर देंगे, अदरवाइज they will ask you कि ये डिजाइन तो आपके इंटीरियर में सूट नहीं करेगा, ये यहाँ वर्क नहीं करेगा, वो वहाँ वर्क नहीं करेगा। बट ट्रस्ट मी, क्वालिटी का बहुत फैक्टर रहता है इंटीरियर कंपनीज के साथ। थर्ड पॉइंट इज लेट्सर स्ट्रेंथ, बिकॉज द मेथड्स दे यूज्ड इज this minifix and L-clamp joints to join the plywood. So these joints are not good in strength. आप बहुत ज़्यादा weight आप रखोगे तो ply bend हो जाएगी. So that are the problems which occurred, and ये मैंने खुद देखा है, मतलब जब मैंने अपना इंटीरियर स्टार्ट कराया था उससे पहले आई हैव विजिटेड अ लॉट ऑफ फ्लैट्स इन आवर सोसाइटी एज वेल एंड इन अदर ऑफ सोसाइटीज वेयर माय फ्रेंड्स वर स्टेइंग. सो इन दैट societies I have seen this thing, like if you're going with interior company, they are doing this thing. So they have these two technologies only, minifix and L-clamp, and these joints are not good in strength. And the fourth thing is modification. Modification is costly. Why so? That I have covered already. आप पहले एक डिजाइन आपका फाइनल होगा, आप इंटीरियर कंपनी से बात करोगे, डिजाइन पे वो वर्क करेंगे। अगर मिड में आप आके देखते हो, आपको वो डिजाइन लगता है कि यार ये चीज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है, इसको यहाँ कर सकते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन अगर आप उनको बोलते हो तो दे विल डू इट। पहली बात तो वो लोग थोड़ा रिजिड है, दे विल स्टार्ट थ्रोइंग टैंट्रम्स, दे विल डू इट बट दे विल आस्क यू मोर, क्योंकि अब तो आपने इसको काम दे दिया है, आप किसी और कारपेंटर को हायर करके वो काम तो नहीं कराओगे, उसी से कराना पड़ेगा आपको, तो दे विल आस्क यू मोर. So that is why I'm telling you कि modification is little costly in interior company. Then control is in their hand, because they are designing your house and they are doing it as a business. They have to do a lots of flats. So आपका कुछ भी input नहीं है आपके इंटीरियर के अंदर. Whatever they are doing, you have to agree on it, because ऐसा नहीं है कि कई बार हम लोग मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं, सपोज आई एम गोइंग टू बाय सम ड्रेस, वहां मुझे अच्छी लग रही है, मैंने ट्राई नहीं किया, घर आके देखा मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो अगर आप यहाँ पे वो चीज करते हो तो आपको क्या, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने सारा मतलब मोर देन 80% आप मतलब उनको ही दे दिया अपना इंटीरियर कि आप करो, आपको कैसे डिजाइन करना है, एंड यू आर जस्ट सिंपली नॉडिंग योर हेड कि हाँ ये नहीं है, ये चाहिए, ये नहीं है, ये चाहिए, बट you have to think in your own way. This is your house, not theirs. So for them it is a business, for you it is a house. So that is the main difference. And yeah, GST, a big factor. Suppose you went to an interior company and they are asking some 10 lakhs to you. So on 10 lakhs they'll ask 1.8 lakhs extra. That means 18% of the GST. And 1.8 lakhs, you can spend it that amount in your interior. You can utilize that amount. For you it is just a wastage. So yeah, I would suggest you can take this point to save some money. And then rigid on negotiation. So once they quoted some price, they're very rigid. Like if you are good in negotiation, then you can do it, but I have never seen any company who are like reducing their price or ready to negotiate. So that is very big challenge. And they take 100% पेमेंट बिफोर हैंड, बिफोर योर वर्क, मतलब कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, आपने डिजाइन फाइनल किया, आपका इंटीरियर आपने बोल दिया कि हाँ मुझे इंटीरियर कंपनी के साथ जाना है, आपको पूरी 100% पेमेंट पहले देनी पड़ेगी. बहुत सारी इंटीरियर कंपनीज में क्राइटेरिया है, अभी वो लोग कुछ 70-30 कर रहे हैं, बट स्टिल पेमेंट का जो है वो देयर इट इज मोर इंक्लाइन टू द कंपनी, नॉट टू यू. तो आपका जब पैसा ही आप पहले दे चुके हो सब कुछ, तो आप क्या बोलोगे अब, मतलब बहुत डिफिकल्ट है वो. देन फोकस्ड ऑन फैक्ट्री फिनिश. इनका मतलब रहता है कि इनका पूरा फोकस होता है फैक्ट्री फिनिश, और फैक्ट्री फिनिश में क्या है, मोर देन 80% ऑफ द वर्क इज फैक्ट्री फिनिश इन इंटीरियर कंपनीज. तो there is a doubt on ply and pasting कि what plies they're actually using, what kind of favicol they're using, because
Pasting plays an important role in interior. So whether they are doing it properly or not, so you don't have any count on that. Into the pros of local carpentry work. The first thing is moderate prices. Moderate prices means उनका प्राइस इतना ओवर प्राइस नहीं होता, जैसे कि आप इंटीरियर कंपनीज के पास जाते हो तो वो रैंडमली कुछ भी 15-20 लाख, तो जैसे कि बहुत छोटी सी अमाउंट है उनके लिए तो कुछ भी कोट करते हैं. लोकल कारपेंटर के प्राइस उनके कंपैरिजन में तो काफी कम होते हैं, मतलब काफी भी नहीं, मतलब मॉडरेट प्राइसेस होते हैं. तो ठीक है, मतलब आई टेल यू कि दे ऑल्सो take out some profit in that, but still it is okay. Second thing is the material. They'll use good quality material. Why I'm writing this here? Because you should take, or you can take the control of your material in your scope if you are going with local carpenters. So आपको पता है, आप उसको बोलो कि आप या तो आप उसके साथ शॉप्स पे जाओ जहाँ से वो मटेरियल परचेज कर रहा है, आप वहां जाके देख सकते हो कि उसने क्या परचेज किया है, क्या मटेरियल लिया है. यू कैन चेक दी प्लाई कि वो नीम प्लाई है, वट एवर प्लाई यूर यूजिंग, और उसका सॉडस्ट क्या है, रेड कलर का है, किस कलर का है, इज देयर एनी ओवरलैपिंग इन प्लाई. सो आप ये चेक कर सकते हो कि उसने कुछ भी ऐसे डिफेक्टिव उठा के तो नहीं ले आया है या कुछ भी लो क्वालिटी, तो आप चेक कर सकते हो. या फिर आप वो स्कोप अपने अंदर ही रखो, आप उसको मतलब ये बोलो कि जो मटेरियल होगा वो मैं खुद परचेज करूंगा, तो ही विल सजेस्ट यू गुड मटेरियल, क्योंकि मटेरियल का तो उसको कुछ पे ही नहीं करना है. सो यू आर जस्ट पेइंग हिम ऑन पर स्क्वायर basis, so that is also a good thing. Then more strength screw but joints. See, मैंने जैसे आपको बताया कि जो इंटीरियर कंपनीज होते हैं दे विल यूज मिनी फिक्स एंड द एल क्लैम्प्स, बट हियर दे विल यूज बट जॉइंट्स टू जॉइन, मतलब जो प्लाई ली उसको वो स्क्रू से जॉइन करते हैं. एंड वी हैव टेस्टेड इट, वी हैव लाइक टेस्टेड इट फॉर 100 kg वेट, और वो प्लाई मतलब बैंड, मुझे बैंड का कोई इशू नहीं मिला, तो स्ट्रेंथ इज मोर. देन मॉडिफिकेशन इज वेरी चीप, बिकॉज आप घर में काम करा रहे हो, आप खुद ही प्लाईज लेके आ रहे हो या जो भी है, तो आपकी बहुत सारी प्लाईज बच भी जाती हैं. आपको कुछ मॉडिफिकेशन कराना है कि चलो मुझे ये यहाँ पे ये चीज़ बनवानी है, आप वो कर सकते हो. दूसरी चीज़ है कि आपको कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे केस में ये हुआ था, वन ऑफ द डिज़ाइन आई डोंट लाइक, मतलब प्रीवियसली मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन जो वो बनकर आया तो मुझे वो पसंद नहीं आया, तो आई आस्क हिम कि कैन यू प्लीज चेंज इट. सो लोकल कारपेंटर दे आर रेडी टू चेंज इट. दे विल नॉट throw tantrums, or they will not like, oh I will not do it and this is a repeat work. This thing will not happens with local carpenter work. And then more control is with us, so that is the main reason of local carpentry work, because here you are the designer, you are designing your house in your own way, you have a control on your work. तो कुछ भी ऐसे ही उठा के कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, दैट इज अ थिंग. देन जीएसटी आप सेव कर सकते हो. लोकल कारपेंटर के साथ आपको 1.8% सॉरी 18% जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, सो दैट इज अ गुड थिंग. देन नेगोशिएशन बेस्ड ऑन योर स्किल्स, दे आर रेडी टू नेगोशिएट. ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने 10 लाख 9 लाख कोट किया तो वो लोग रिजिड है कि वो कोट मतलब प्राइस रिड्यूस नहीं करेंगे. इफ यू आर गुड इन रिड्यूसिंग दैट प्राइस, इफ यू आर गुड, so based on your skills you can negotiate certain amount. Then the payment plan. See, in interior companies you are giving the full payment, 100% payment, and mostly 100% payment, and some 70-30 ratio is there. But here the payment plan is mutual, because you can ask him कि आपको कुछ भी आप एक चूज कर सकते हो कि जैसे जैसे मेरा वर्क प्रोग्रेस करेगा देन आई विल डू द पेमेंट. और मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कभी भी ये मत बोलो कि 15 दिन के बाद मैं 1 लाख दूंगी, 15 दिन के बाद मैं ये नहीं. 15 दिन में उसने काम क्या किया है, मतलब आपको ये देखना है कि इतना वर्क मेरा हो जाएगा, मतलब मेरा स्ट्रक्चर बनेगा तब तक मैं तुम्हें जितना इतना पैसा दूंगी, जब मेरा लैमिनेट लगेगा तब मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी. तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल है मनी के ऊपर रहेगा, और अगर मनी आपके हैंड में है तो ही हैज टू वर्क. सो दैट इज अ थिंग. देन ऑप्शंस ऑफ हाइब्रिड, मैनुअल एंड फैक्ट्री. यहाँ पर भी आप फैक्ट्री फिनिश जा सकते हो. आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फैक्ट्री फिनिश में, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप जाके चेक कर सकते हो कि आप प्लाई वो यूज़ कर रहा है. Then he can do manual work at home, your house only, and you can go with hybrid work model. So I'll cover these points later. So be with me. So I'm coming with local carpentry work cons. So the first thing here is the time issues. See, local carpenter you should not trust कि वो टाइम पे कभी आएंगे और टाइम पे आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे. सो मैं आपको एक वे सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन, इट इज जस्ट द वे वी आर टैकलिंग इट. आप उनको पहले ही बोलो
फैक्ट्री फिनिश वर्क होता है तो वो बहुत कम टाइम में होता है. इफ यू आर गोइंग विथ मैनुअल वर्क so it will take definitely some time. Interior company is taking 45 days, but with local carpenter, it will take minimum 60 days. So take a buffer of extra 15 days, like 60 plus 15. And after 15 days, if he's taking time, you can charge a penalty. And that thing should be before your agreement. Or maybe if he is not delivering the work on time, कि 2 महीने से 10 दिन 5 दिन तो everyone can manage, but if it is more than that you can ask a penalty on him. देन मॉडरेट प्रोफेशनलिज्म मैंने ऑलरेडी कवर किया है, क्योंकि आप लोग का मतलब टाइमिंग का इशू रहता है कि आपको 10 बजे बोले 10 बजे वो आपके घर पे आ रहे हैं काम करने के लिए. दैट इज अ मीन्स क्वेश्चन. नॉट एवरीवन इज सेम, बट या दे आर नॉट वेरी पंचुअल, दे आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग. सो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पे, बट हाँ इट इज मैनेजेबल. देन 75% इज योर एफर्ट एंड द रेस्ट इज योर कारपेंटर्स एफर्ट. देखो अपना हाउस खुद बनाने जा रहे हो, खुद एफर्ट डालना पड़ेगा. क्या डिजाइन्स बनाना है, क्या क्या चीज करानी है, कौन सा हार्डवेयर सिलेक्शन कैसे कराना है, आप उसको पूछ सकते हो. यू कैन टेक हिज एडवाइस, बट डोंट रिलाई ऑन एनीवन्स एडवाइस. आई विल सजेस्ट यू. देखो आपको एडवाइस लेना इज नॉट बिग, लाइक not a mistake or not a harm. You can go and ask anyone's advice, but whether that person has done a research or that person has that knowledge to give you the review, that is the thing. क्या पता उसने भी कहीं सुना हो और उसने आपको बताया हो. सो थोड़ा सा फीडबैक लेना बहुत जरूरी है. देन ट्रस्ट इश्यूज है. ट्रस्ट इश्यूज में क्यों बोल रही हो, क्योंकि इसके लिए इसको आप कैसे टैकल करोगे. आप अपना कोई भी कारपेंटर ले रहे हो, प्लीज ऐसे ही रैंडमली किसी भी लोकल कारपेंटर को मत लो. just check the work whatever he has done. Go and ask those people जिसका उसने काम किया है, कितने टाइम में किया है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे कैसे पेमेंट का कुछ इश्यू, कोई लफड़ा हुआ, कुछ नहीं, मतलब पहले ही क्लियर करो. और यू कैन से यू कैन लाइक कुछ नोन आपका कोई किसी ने फ्रेंड ने सजेस्ट किया है तो आप वो कारपेंटर कर सकते हो. यू कैन गो एंड चेक हिज हाउस वेयर ही इज लिविंग. सो दैट देयर आर द बेसिक थिंग्स यू कैन डू फॉर building a trust issue. So for us it worked. So coming to the factory finish, first thing is smooth finishing. तो फैक्ट्री फिनिश में आपको सब कुछ फैक्ट्री में हो रहा है, मतलब आपकी प्लाईज भी फैक्ट्री में कट हो रही है, आपकी एज बिडिंग फैक्ट्री में लग रही है, आपकी पेस्टिंग फैक्ट्री में हो रही है. तो जो मतलब बोलते हैं ना एकदम जो अपीयरेंस होती है, देखने में जो अच्छा लगता है वो फैक्ट्री फिनिश में वो स्मूथ वो फिनिशिंग आती है. देन सेकेंड थिंग इज हार्ड प्रेस, बिकॉज दे आर यूजिंग लाइक 120 ton or some weight to press the ply, means to press the laminate on the ply. So that weight actually matters. तो उसमें बबलिंग का चांसेस बहुत कम होता है, तो दैट इज अ गुड थिंग. और उसमें मतलब फाइननेस रहती है उस काम में. फिर देन टाइम इज लेसर, बिकॉज आप 100-20 प्लाई 150 प्लाई ऐसे, मतलब मेरे ख्याल से उनको 2 या 3 घंटे लगते हैं. आप 2-3 घंटे भी नहीं लगते हैं, तो आप अपने सामने भी जाके करा सकते हो और टाइम बहुत सेव होता है इसमें. तो दैट इज अ थिंग. देन पेस्टिंग और बबल इशू एज आई सेड कि वो नहीं आते हैं फैक्ट्री फिनिश में, but the main thing is only ply. If you are not going to check what ply they are using, then it will be a big trouble for you, because they are using bad plies for interior. They are hiring some people who are going to certain shops where they'll see they'll put some defective plies and the shopkeeper is selling those plies on cheap price. So that is a way, as we know ना, होटल्स में भी तो यही होता है. तो ऐसा ही इंटीरियर कंपनीज में भी होता है. प्राइसिंग का बहुत रहता है इशू. प्लाई या पेस्टिंग आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर यूजिंग दे हैव अ जेनेरिक फेविकॉल विद देम. सो उसमें कई बार वो लोग पानी भी मिक्स करते हैं. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है. मैंने जाके खुद चीज देखी है कि ऐसा हो रहा था मेरे सामने. इसीलिए मैं ये चीज आपको आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि आप सबको भी इसका कुछ बेनिफिट मिले. क्योंकि अगर आपको पता रहता है ना, पहले माइंड में रहता है कि हाँ है ये सब चीजें होती है, ऐसे ऐसे होता है, तो आप उसे पूछ सकते हो. अगर आपको कुछ नहीं पता, यू आर ब्लैंक, तो वो जैसा बोलेगा आपको मानना पड़ेगा. तो भैया घर में आजकल सबको मतलब अपीयरेंस भी अच्छी चाहिए, फिनिशिंग भी होनी चाहिए और मजबूती भी होनी चाहिए. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट गो फॉर हाइब्रिड वर्क मॉडल. हाइब्रिड में क्या होता है ना, आपको क्या विजिबल हो रहा है, आपको जो आउटर शटर्स हैं दैट इज ओनली विजिबल टू यू. So you can go for factory finish work for outer shutters, and rest of the work you can go for manual work. So that is a good solution. Structure is like in making this
पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इसका, दैट इज अ मैनुअल एफर्ट. एंड जो आउटर स्ट्रक्चर होता है आपका, जो आउटर शटर्स होते हैं, यू कैन गो विथ फैक्ट्री, सो इट इज गुड थिंग. देन स्ट्रेंथ विद like you will get a strength also and good finishing also, so yeah, you can take it. And cons of it, like more timely. Why timely? हाइब्रिड वर्क मॉडल है, आप मैनुअल वर्क भी करा रहे हो तो टाइम तो लगेगा. देन स्ट्रक्चर अलाइनमेंट इश्यूज, मतलब 90 डिग्री एंगल पे उसको वो कट कर रहे हैं प्लाई को, उसको प्रॉपरली अलाइन कर, दैट इज अ बिग चैलेंज. अगर आपका कारपेंटर अच्छा है तो ही कैन डू इट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है. तो यू कैन आस्क हिम वेदर दिस प्लाईज आर कटिंग इन 90 डिग्री और नॉट. सो फैक्ट्री में प्लाई कटती है तो वो 90 डिग्री एंगल्ड होती है. आप हाथ से घर पे प्लाई को काटते हो तो वो 90 डिग्री प्रॉपरली एंगल्ड नहीं होती है. तो जब आप उसको शटर्स फिक्स करते हो ना, अपने डोर मतलब डोर्स में शटर्स लगाते हो, तो जो शटर्स की अलाइनमेंट होती है उसमें आप देखना जाके, यू विल सी सर्टेन वेरिएशंस इन दैट. कमिंग टू द मैनुअल वर्क. मैनुअल वर्क में जितनी भी आपकी कटिंग्स होंगी, पेस्टिंग्स होंगी, दे ऑल आर डन मैनुअली. ट्रांसपेरेंसी इज मोर क्योंकि यू हैव अ काउंट ऑन द प्लाई, ठीक है, ये एक अच्छी चीज होती है. कटिंग पेस्टिंग आपके सामने हो रही है सब कुछ, तो मतलब जो बोलते हैं ना गैप्स वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं. आप कभी भी देखना इंटीरियर कंपनीज के जो इंटीरियर होते हैं जिसमें आपका वार्डरोब हो गया है कुछ, क्योंकि आपका जो ये वॉल होता है एंड देन फ्लोर, इसमें सर्टेन डिफरेंस रहता है, ये कुछ ना कुछ mm का डिफरेंस रहता है. एंड दैट डिफरेंस दे विल नॉट, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो एक साइज लेके जाके फैक्ट्री में बना के लेके आते हैं और उसको यहाँ पे फिक्स करते हैं. अगर गैप रहता है तो दे विल मतलब कुछ कुछ लकड़ियां डाल के या कुछ सिलिकॉन से या किसी चीज से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. बट इधर पे वो खुद ही मेजरमेंट यहीं पे ले रहे हैं, यहीं पे प्लाई को कट कर रहे हैं, तो मतलब उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है यहाँ पे. देन फिनिश डिपेंड ऑन कारपेंटर स्किल्स, दैट इज रियली बिग थिंग. क्योंकि हर एक कारपेंटर अच्छा नहीं होता है. आपको पहले चेक करना है कारपेंटर किस तरीके का काम कर चुका है, कैसा उसने काम किया है, क्या फिनिशिंग आ रही है कि नहीं आ रही है काम में. सिर्फ मजबूती से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम घर बना रहे हैं, घर सुंदर भी लगना चाहिए, अच्छा भी दिखना चाहिए, तो फिनिशिंग भी डिपेंड करता है. तो दैट इज गुड थिंग. यू शुड चेक, जाओ फ्लैट देखो खुद से कैसे काम किया है, हर एक चीज ओपन करके देखो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, सब कुछ देखो. ऐसे बाहर से दिखने से नहीं, प्रॉपरली अलाइन है या नहीं, गैप्स है या नहीं. अगर आपको ये चीज पता ही नहीं होगी तो आप जाओगे देखोगे अच्छा ठीक है सही लग रहा है, बट मतलब हर चीज को बारीकी से देखो, नोट करो कि ये सब चीजें हैं और तब आप उस पर काम कर सकते हो. देन सेव कॉस्ट ऑफ मशीन पेस्टिंग. So yeah, if you are going with manual work, तो they are doing the pasting at home, they are doing it manually. आपका जो पेस्टिंग का कॉस्ट है वो सेव हो सकता है मैनुअल वर्क में. So before going for functional comparison, I'll tell you one important thing which just came in my mind. जो फैक्ट्री फिनिश में आजकल क्या होता है ना, they'll take the contract of your flat, पर they are actually giving the work to some local carpenter. अभी इंटीरियर कंपनीज में भी उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं बचा है, क्योंकि मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व करी है. वो आपसे काम लेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है इतना है, और यू आर टोटली रिलाइंग ऑन दैट कंपनी, पर एक्चुअली द वर्क इज डन बाय सम लोकल कारपेंटर्स ओनली, बिकॉज दे आर हायरिंग सम लोकल कारपेंटर्स फॉर दैट वर्क, बिकॉज दे आर डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. सो उनके पास उतनी लेबर नहीं रहती है, तो वो लोग बाहर से ही आउटसोर्स करते हैं, बाहर से ही लोगों से काम करते हैं. इफ दे आर टेकिंग मींस लोकल कारपेंटर, तो यू कैन आल्सो गो विद लोकल कारपेंटर. द ओनली थिंग इज लाइक ना कि इंटीरियर कंपनी के साथ देयर इज अ डिजाइनर, ही विल गाइड यू. But in manual work also, or in hybrid work model also, you can ask and go for any designer, you can ask any design, and for my opinion, if you go na, then make your own design, because you know ना आपको अपने हाउस में क्या चीज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, फंक्शनैलिटी चाहिए, ऑपरेशन ठीक से होना चाहिए, मतलब सब कुछ, मतलब आपको खुद पता होता है कि मुझे अपनी किचन इधर चाहिए क्योंकि मुझे मैं ये यूज करती हूँ, तो मुझे ये चीज मेरे नियर बाय होनी चाहिए, इस कंफर्ट लेवल पे होनी चाहिए. तो आपका घर आपसे बेटर तो कोई नहीं डिजाइन कर सकता. तो आप थोड़ा मुश्किल है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, आप सोच सकते हो. डिजाइन सबके माइंड में होते हैं. आजकल तो इंटरनेट है, यू हैव लॉट्स ऑफ डिजाइन ऑन इंटरनेट, बट कुछ भी रैंडमली पिक मत करो. पहले देखो कि इसमें खचर पचर मत करो. मतलब मेरा ये ओपिनियन है, खचर पचर मत करो घर में. काफी सोच समझ के अपने घर का इंटीरियर कराओ, क्योंकि वी हैव लिमिटेड स्पेस और एवरी सिंगल इंच मैटर्स हियर्स.
आप कुछ भी भर दोगे इसके अंदर, फिर बाद में आपको कुछ सामान लेना पड़ता है, क्योंकि होता है ना, ये कुछ लेना है, कुछ ये करना है, आपके घर में जगह ही नहीं है रखने की। अगर आप रखते हो तो बहुत कंजस्टेड लग रहा है घर, तो घर में इतनी स्पेस तो रखो कि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आया है, कुछ मैं लेके आती हूँ घर में, तो मेरे घर में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आई कैन कीप दैट आइटम एट माई हाउस। सो ये चीज़ पहले पहले ही उसको इतना मत भरो, और प्लीज़ डोंट गो फॉर, मैंने ये चीज़ देखा है, ये स्टोरेज वो स्टोरेज, कितना कितना स्टोरेज चाहिए यार लोगों को। मतलब स्टोरेज ठीक है, बट आप देखो कि आप उसको करने के बाद घर को कितना मतलब पूरा आपका एकदम कंजस्टेड हो जाता है घर, कहीं भी देखो वो घर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा मतलब सब कुछ भर रखा है घर के अंदर। तो थोड़ा मतलब ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज डोंट टेक इट हार्ड ऑन यू एनी वन, प्लीज डोंट फील बैड, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे लगता है कि ज़्यादा काम कराते हैं आपको ज़्यादा सफाई भी करनी पड़ती है, यू हैव टू मेंटेन योर हाउस। कम काम कराओ, मेहनत कम लगती है, टाइम आपका बचता है, और सिंपल लगता है, एंड सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज एलिगेंट। So that is it. So this is a functional comparison. Here I have taken certain parameters. Okay, the first thing is price. For price, I'll give 1 to the local carpenter because their prices are cheap. Timely delivery, I'll give 1 to the interior company, 0 to the carpenter work. Interior companies, they are very punctual, they'll deliver your project on time. Professionalism, of course, with interior company, not with the local carpenter, but I will not give 0, but I'll give certain amount, maybe 50-50, we can say. They're moderate in professionalism. Strength, yeah, of course, local carpenter work is good in strength. Alterations, very easy with local carpenter work. They are always ready to do modifications. They will not ask lots of questions. Okay, then trust, yeah, it is with interior company. With, but if you are going with local carpenter and it is a known carpenter, then you can go with him. So trust issues भी आपको नहीं आएगा. But I'm just giving you a generic view. Payment plan is good for if you're going with local carpenter, क्योंकि पेमेंट आपके पास है, आप एक प्लान क्रिएट कर सकते हो कि मेरा इतना काम होगा, मैं इतनी पेमेंट दूंगी, इतना काम होगा, इतनी पेमेंट दूंगी, तो आपके पास पैसा है, आपने रोक के रखा है, so he will listen to you and he will do work as per you. Then satisfaction, yeah, of course, with interior company and local carpenter will be fun one. Why? Because ठीक है, वो भी आपका जो काम डिलीवर जो आपने बताया है वही बना के देते हैं, अपीयरेंस गुड है तो सेटिस्फेक्शन आपको हो जाता है, बट हाउ क्वालिटी इज गुड और नॉट, दैट इज अ बिग थिंग. But yeah, local carpenter will give 1. Control wise, it's not in your hand with interior company. So मतलब they are very arrogant. मैंने देखा है लास्ट में कुछ क्योस भी हो जाता है पेमेंट को लेके, तो बहुत प्रॉब्लम होती है. ये आज के टाइम में वो टाइम नहीं है कि इंटीरियर कंपनी है तो वो कुछ कुछ नहीं होगा, मतलब सब कुछ स्मूथली चलेगा, कुछ पंगा नहीं होगा. नहीं, बहुत सारे केसेस यहाँ पे भी हुए हैं, हमारे सोसाइटीज में भी हुए हैं, इवन विद बिग बिग कंपनीज. आई वोंट टेक नेम ऑफ दोज कंपनीज, बट हाँ, बहुत सारी कंपनी के साथ ऐसा लोचा हुआ है यहाँ पे. So yeah, you should think of it. Then local carpentry work, I will give 1 because control is definitely in your hand. So yeah, so on a score of 9, I'll give 4 to interior company and 6 to the local carpenter work. Okay, then coming to the functional comparison of factory finish, hybrid work model, manual work model. मैंने हाइब्रिड गिराया है, पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सब कुछ ब्लाइंडली सजेस्ट कर रही हूँ. वट एवर आई फेस्ड ना, दैट इज ओनली आई एम टेलिंग यू, एंड माई ओपिनियन एंड माई चॉइसेस मे वेरी, इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन. इट्स नॉट लाइक कि मैंने जो बोला है वो एवरीवन इज एग्रीइंग टू दैट, बट things are like that. Now, it is my personal opinion. So yeah, so first thing is, now with factory finish, the finishing is very good. Hybrid work model also, because you are using the outer shutters as factory pasted only now, so the finishing is good in hybrid work model also. In manual, finishing is not that up to that mark. Strength wise, factory finish, I'll give 0. I'll give 1 to the hybrid work model, 1 to the manual work model. Then pasting issues. Pasting issues with factory finish, yeah, definitely 1, because there are no chances of bubbles, and see, because of the heavy weight, so it is highly pressed, so that is why. Then hybrid work model, I'll give 1, and in manual work pasting issues 0. मैं इसलिए दे रही हूँ, मैंने अब मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम है, आई एम गिविंग 0 ओनली. वाई? बिकॉज अगर उन्होंने अच्छा फेविकोल यूज नहीं किया है और अच्छे से उसको प्रेस नहीं किया है, अच्छे से पेस्ट नहीं किया, दे आर नॉट गुड एट इट, तो उसमें बबल्स आने के चांसेस रहते हैं, तो बी कॉशियस अबाउट दैट. Quality, I'll give 0. To factory finish, I'll give 1 to hybrid and manual work. Modifications, very difficult with factory finishing work. Factory finish work modifications, very difficult. And hybrid work model, anytime you can modify. Manual, anytime you can modify.
Score I'll give on a count of 5. The score for factory finish is 2. The score for hybrid work model is 5 on 5, and manual work model is 3 on 5. So this is how it goes. So at the end, this is my conclusion. Based on my opinion, I'm repeating this. Please don't feel bad if someone has done something else. This is my opinion. Local carpentry work is very good and hybrid work model is very good. So yeah, these two things you can go with. But trust me, इंटीरियर इज अ बिग बिग चैलेंज एंड अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया यू आर जस्ट सिंपली रिलाइंग ऑन अदर पीपल तो आपका इंटीरियर मतलब जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं बन पाया ऐसा भी हो सकता है तो आपको देखना है कि आपका जो इंटीरियर बन रहा है मतलब आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अपने घर में तो वही है भाई और बहनों घर एक ही बार बनता है बार बार तो नहीं बनता है आजकल की जैसी महंगाई है और बनता भी है तो भी अगर फिर इट इज अ फर्स्ट हाउस तो मतलब अपने हाउस में थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाओ सिंपली किसी के ऊपर रिलाई मत करो डिजाइन के लिए भी और वर्क के लिए भी बी अ लिटिल मोर अलर्ट पीपल आर हियर हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स मींस interior company is not that trustworthy nowadays so it's very difficult to trust on anyone so yeah so I'll end this video here. I think it is helpful for you and I'm trying to make another video where I'll list out all the questions which you should ask for your interior companies or your local carpenters or whatever model you're going whomsoever you are going with there are certain questions which you should ask before giving them your contract so yeah thank you stay tuned with me and do like share and subscribe my channel this is like I am not that perfect in creating videos and all those stuffs but I am interested in this field nowadays I'm like getting lots of questions with other people who are asking me lots of queries related to interior so I am thinking like why should not I try this and make a video on it please subscribe the channel